What about Malus law? This is the polarizer. Sorry, this is the polarizer. This is the analyzer. Okay. If unpolarized light incident on polarizer, what happen if the intensity is here I naught? The intensity become after polarizer. It is half, just half. Okay. And after that, when the light passes, it is plane polarized. Okay. When it is passes here, it is also polarized, but intensity may vary. It depends on the angle between the analyzer and polarizer. Here it will be I naught upon 2. Intensity of here cos square theta. This is the Malus law. Okay. You know very well. Now let us do some questions. Write down question. Question is three identical polarides polaroid sheets, three identical polaroid polaroid sheets P1, P2 and P3. P1, P2 and P3 are are oriented so that the axis of P2 and P3, the axis of P2 and P3 are inclined. P2 and P3 are inclined at angle of and angles of 60 degree and 90 degree. 60 degree and 90 degree. Three sheets are there. 1, 2 and 3. Okay. Angle between them is 60 degree. This is P1, this is P2, this is P3. P1, P2, P3. Okay. 60 degree, 90 degree respectively with respect to with respect to the axis of P1. The, with respect to the axis of P1. With respect to the axis of P1. A monochromatic source, a monochromatic source, write down, a monochromatic source S of intensity I naught of intensity I naught is kept in front of the polaroid sheet, is kept in front of polaroid sheet polaroid sheet P1. Find the intensity, find the intensity of the light, find the intensity of light as observed by O1, O2 and O3. O1, O2 and O3. Observed by O1, O2 and O3 positioned positioned as shown below. Positioned as shown below.
फिगर बना लो आप लोग, इस पे फिगर बना के देखो, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, O1 O2 O3। बोला है कि P1 के रेस्पेक्ट में P2 60 एंड P1 के रेस्पेक्ट में P3 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ध्यान रखना ये P1 के रेस्पेक्ट में है दोनों। तो पहले फिगर बना लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं O1 पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, O2 पे इंटेंसिटी कितनी आएगी और O3 पे इंटेंसिटी कितनी आएगी। O1 O2 and O3, what will be the intensities on these three points। सबसे पहले बात करते हैं O1 पे। O1 पे अगर हम बात करें तो ये O1 पे देखना ध्यान से, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि इट विल बी I0/2। I0/2 O1 पे इसका हाफ हो जाता है, क्योंकि ये पोलराइड है, ये पोलराइज कर रहा है। फिर ये दोनों एनालाइजर है। तो यहाँ पे O2 की अगर हम बात करें, O2 पे जो इंटेंसिटी आई थी, यहाँ से जो इंटेंसिटी यहाँ जा रही है, यहाँ पे क्या मिला हमको, I0/2। यहाँ पे जो भी जाएगी इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, I0/2 cos 60, cos 60 is √3 by, sorry, 1/2 whole square, it will be I0/8। Here it will be I0/8। What about O3? कितना आएगा, कोई बताएगा? What about O3? कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। व्हाट अबाउट O3? I/32। कैसे? I/32, I0/32 कैसे देखते हैं। देखना इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री बना रहा है इसके रेस्पेक्ट में। देखना अगर हम cos स्क्वायर 90 कर दे तो पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट बना रहा है। और बात आती है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच ये 60 बना रहा है और ये इससे 90 बना रहा है। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 30। 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी, ध्यान रखना, जो इंटेंसिटी आएगी उसका cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, सॉल्व करके बताओ। I0/2 into cos 30 is √3/2 whole square, sorry, I/8। it is I0/8 ना, I0/8 multiplied by 3/4, so 3I0/32, 3I0/32, it is the answer, this is the answer। देख लेना कहाँ गड़बड़ी हुई है। नैतिक
The answer is 3 I naught upon 32. 1/2 रख देगा यहाँ पे, 1/2 रख दिया गया. डन. ओके, राइट डाउन हेडिंग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. लाइट जो वाइब्रेट कर रही है उनका प्लेन क्या होता है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. हेडिंग है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. नोट इट डाउन. The plane containing the plane containing the direction of vibration, the plane containing the direction of vibration and the direction of wave propagation. Direction of vibration and direction of wave propagation. Write down next heading plane of polarization. Plane of polarization. इसको बोलेंगे plane of polarization. The plane passing through the plane passing through the plane passing through the direction of wave propagation. The plane passing through the plane passing through the direction of wave propagation. The direction of wave propagation and perpendicular to the plane of vibration. And perpendicular to the plane of vibration. Okay, done. Write down main heading. एक main heading लिखना, उस पर लिखना methods of producing plane polarized light. Methods of producing plane polarized light. Methods of producing plane polarized light. Number 1, polarization by reflection. Polarization by reflection. दूसरा नंबर है इस पे, सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट नंबर पे था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. सेकेंड पॉइंट नोट इट डाउन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. ओके. नंबर वन पे लिखना. यही दो टॉपिक हमको पढ़ना है अभी, और ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद फिनिश हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर. तो सबसे पहले इस पे लिखो मेन हेडिंग में, फर्स्ट नंबर, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. विद इन ब्रैकेट लिखना पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन.
पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, हेडिंग है ये। इसमें लिख लो ब्रूस्टर लॉ, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, इसको ब्रूस्टर लॉ भी कहते हैं। ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रिसर्च किया था, तो ब्रूस्टर लॉ। इसमें लिखो नीचे उसमें द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट डाउन द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of incidence at which a beam of unpolarized light, a beam of unpolarized light, unpolarized light falling on a transparent surface, falling on a transparent surface, falling on a transparent, falling on a transparent surface is reflected as a beam, is reflected as a beam of completely plane polarized, are reflected as a beam of, as a beam of completely plane polarized light, completely plane polarized light. ओके okay? क्या हो रहा है यहाँ पे देखना, कंप्लीट पोलराइज plane polarized light is called polarization by reflection, is called polarization by reflection. लाइन चेंज करके लिखना, the angle, the angle, the angle at which, the angle of incidence at which, sorry, the angle of incidence at which, the angle of incidence at which polarizing is occurring, polarization is occurring, the polarization is occurring is called Brewster angle, Brewster angle is called Brewster angle, या एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी कह सकते हैं इसको हम, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। बेसिकली क्या होता है कि एक ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, फिगर बनाना पड़ेगा आप लोगों को, एक लाइट आ रही है जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, ध्यान रखना ये अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है। अनपोलराइज्ड लाइट ये फॉल करती है तो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, सब लोग जानते हैं। ये जो इंसिडेंस है इसको हम आईपी कहेंगे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या ब्रूस्टर एंगल कह सकते हैं इसको। और ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ये भी अनपोलराइज्ड है, ये भी लेकिन ये प्लेन पोलराइज्ड, ये प्लेन पोलराइज्ड ऐसे बनाए, चाहे एक कोई बना ले सिंगल, दो में से कौन हो, ये वाला बनाए चाहे ये वाला बनाए, दोनों में से ये प्लेन पोलराइज्ड। आरपी, ड्रॉ द फिगर आरपी।
ये 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री बनाना जरूर। ड्रॉ द फिगर, ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस। डन। ओके, देखना यहाँ पे क्या है, बहुत इजी है। कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इस पे एक लाइट फॉल कर रही है, लाइट फॉलिंग, लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है, तो क्या होगा, ये अनपोलराइज्ड लाइट। ये कह रहा है कि हम इसके एंगल को चेंज करते हैं तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, बोला था मैं उस टाइम पे, याद रखा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल के रेज के बीच में जिस टाइम पे 90 डिग्री बनने लगता है, जिस टाइम पे ये 90 डिग्री बनने लगता है, उस टाइम पे जो एंगल होता है वो आईपी बोला जाता है। उस टाइम पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है दैट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, वो प्लेन पोलराइज हो जाती है। जब 90 डिग्री बनता है तब ये प्लेन पोलराइज हो जाती है और ये वाली अनपोलराइज होती है। ये अब हमको पोलराइज लाइट मिलने लगती है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्ट, पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। ओके, पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि ये 90 डिग्री है, ये क्या है, ये क्या है, आरपी, ये आरपी है, ये आई है, तो जानते हैं कि ये भी आईपी होगा। यस, आईपी, आईपी प्लस 90 प्लस आरपी, ये पूरा 180 हो जाएगा। देख लेना, क्या बोलेंगे, आईपी प्लस 90 प्लस आरपी दैट इज इक्वल्स टू 180। ये 90 को इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आईपी, सॉरी, आईपी प्लस आरपी दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला, आरपी प्लस आईपी इक्वल्स टू 90 डिग्री। नोट इट डाउन। यू नो वेरी वेल, म्यू आई साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर। इसको वन माने, इसको म्यू माने, इसको वन माने, इसको म्यू माने, तो म्यू आई इज वन, साइन आई पी इज इक्वल्स टू म्यू आर इज म्यू, म्यू साइन आर पी, you know very well, now sin ip mu, mu times sin 90 minus ip, because rp is equals to 90 minus rp, sin 90 minus rp is what, cos ip, cos को डिवाइड कर देना यहाँ पे, sin ip अपॉन cos ip that will be equals to mu, या सिंपली हम कह सकते हैं कि tan ip is equals to mu, means refractive index of the transparent medium. tan ip, tan ip is equals to refractive index of the medium. ओके, बहुत इजी है, इसको आप लोग कर लो। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, ये ब्रूस्टर लॉ है, इसको याद रखना। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, राइट डाउन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ये हो गया होगा आई थिंक, नोट कर लो इसको भी। उसके बाद लिखो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, you know very well what is scattering. Scattering means re-radiation of light in random direction, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, re-radiation of light in random direction स्कैटरिंग होता है। बट हमको स्कैटरिंग नहीं पढ़ना है, इस पोलराइजेशन बाई स्कैटरिंग करना है, ध्यान रखना। मान लो कोई यहाँ पे कोई सोर्स है, ये लाइट रे रेडिएशन कर रहा है हर डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में लेट अस सपोज ये अनपोलराइज लाइट इसकी जा रही है। ये तो अभी प्लेन पोलराइज लाइट का सिंबल है, ध्यान रखना, प्लेन पोलराइज। यहाँ पे अब बना दूँ तो ये क्या होगा, अनपोलराइज, हर डायरेक्शन में जा रही होगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम देखते हैं इसके 90 डिग्री, यहाँ से अगर हम इसको ऑब्जर्व किया जाता है, अगर इसको ऑब्जर्व किया जाएगा तो क्या देखेंगे, यहाँ जो रे आ रही होगी इसके परपेंडिकुलर जो रे आ रही होगी, ध्यान रखना, फिनोमेना वही हो रहा है, स्कैटरिंग ही हो रही है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब देखते हैं तो ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिखती है। ऐसे भी बना सकते हैं या डॉट डॉट वाला भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिखती है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट डॉट वाला भी बना सकते हैं, नो मैटर। ये कैसे हो रहा होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता है स्कैटरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरर। ये ऑब्जेक्ट इसको लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, रैंडम डायरेक्शन में रेडिएट करता है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रेडिएशन हो रहा होगा दैट इज प्लेन पोलराइज्ड, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसको पहले फिगर बना लो। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, एयर मॉलिक्यूल जो होंगे उसको नाइट्रोजन बेसिकली करता है, तो नोट कर लेना इसको, पहले फिगर बना लो। उसके बाद इसमें मैं डेफिनेशंस भी लिखवा देता हूँ। स्कैटरिंग क्या होती है जानते हो, इसमें लिख लो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ये फिगर बना लो, उसके बाद इसमें लिखो ओके, थोड़ा इसमें लिख लो। इफ we look at the blue portion of the sky, if we look at the blue portion of the sky, through a polaroid and rotate the polaroid, through the polaroid and rotate the polaroid, through the polaroid and rotate the polaroid, कोई एक पोलराइड ले ले, इसको हम ब्लू स्काई की तरह देखें और इसको हम रोटेट करें ऐसे ऐसे। रोटेट करने के बाद क्या होगा, देखो इसमें लिखा हुआ है द ट्रांसमिटेड लाइट शोज, द ट्रांसमिटेड लाइट शोज the transmitted light shows a rise and fall of intensity, rise and fall of intensity, rise and fall of intensity। सबको पता है कि एंगल चेंज करने से क्या होगा, उसमें rise and fall होगा। This shows that the light from the blue portion of the sky, this shows that the light from the blue portion of the sky
from the blue portion of the sky is plane polarized. देखना, जब हम लोग पढ़ रहे थे पोलराइजर एनालाइजर रख रहे थे, तो पोलराइजर के बाद हमको क्या मिल रही थी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही थी। और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही होगी तभी वो एनालाइजर को चेंज करने से क्या होगा, उसके बाद जो इंटेंसिटी मिल रही होगी वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी, है ना। इसके यानी कि जो पोलराइजर होगा उसके एंगल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके पहले जो लाइट थी वो अनपोलराइज्ड लाइट थी। पोलराइज्ड लाइट अगर होगी तो एनालाइजर को चेंज करने से उसकी इंटेंसिटी में चेंज होगा। अगर पोलराइजर है तो उसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाती है, उसमें एंगल से कोई डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब कि जब हम स्काई की तरफ अपना वो देखते हैं, पोलराइजर रख के देखते हैं और उस पर वेरिएशन आ रहा होता है, इसका मतलब सिंपल ये मतलब हुआ कि स्काई की तरफ से जो लाइट आ रही है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यानी कि वो ब्लू लाइट है। इसका ये मतलब हुआ ना। लाइन चेंज करके लिखो। This is because the sunlight gets scattered. This is because the sunlight get scattered when it encounters the molecule, when it encounters the molecules of the Earth's atmosphere, encounters the molecules of the Earth's atmosphere. जब उसके सामने आती है, अर्थ के मॉलिक्यूल के उसके सामने आते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, अपनी डायरेक्शन को रैंडम डायरेक्शन में चले जाते हैं। When it encounters the molecule of Earth's atmosphere, हो गया। The scattered light seen in the direction, the scattered light seen in the direction, the scattered light seen in the direction perpendicular to the direction of incidence, perpendicular to the direction of incidence, perpendicular to the direction of incidence is found to be plane polarized, is found to be plane polarized. ओके, बहुत पढ़ लिया इस चैप्टर पे हम लोगों ने, बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने इस चैप्टर में। सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर दिया हूँ आई थिंक। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं हो पाया तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से सारा पॉइंट्स में बता दिया। और यहाँ तक आपका आएगा मिड टर्म एग्जामिनेशन में। दिस इज द सिलेबस ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन, वेव ऑप्टिक्स। ओके, और वेव ऑप्टिक्स तक आएगा, ये ध्यान रखना। और इसके बाद प्रिपरेशन करो। कुछ न्यूमेरिकल्स भी रे ऑप्टिक्स के हैं, रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी पीछे हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है उनके न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को सॉल्व करना है। एक टॉपिक रह गया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से पढ़ा दूंगा उसको, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले एक दिन 2 दिन न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं थोड़ा, और इस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स 1-2 दिन तक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वो करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ लेंगे। उसके बाद टाइम मिलेगा तो फिर हम लोग आगे के चैप्टर्स को करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा।
एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, इसको ट्राई करके अभी बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा इसका। टू फास्ट। टू पोलराइड्स आर क्रॉस्ड टू ईच अदर। टू पोलराइड two polarides are crossed to each other. Question है, two polarides are crossed to each other if one of them is rotated through, if one of them is rotated through 60 degree, if one of them is rotated through 60 degree, if one of them is rotated through 60 degree, 60 degree, then what percentage of the incident, then what percentage of the incidence of the incident unpolarized light, what percentage of incident unpolarized light will be transmitted, will be transmitted by the polarides, unpolarized light will be transmitted by the polarides, by the polarides. इसको करके बताओ। एंगल इज एंगल इज 60 डिग्री। करो, इसको करके बताओ फटाफट आंसर कितना आएगा। ओके, आई एम रिपीटिंग। देखो सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि दो पोलोराइड्स हैं, दो पोलोराइड्स हैं, ये P1 है और ये P2। बोल रहा है कि यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से आ रही है और इनके बीच के एंगल जो है वो 60 डिग्री, और कह रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं इंटेंसिटी I1 मिल रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी I2 मिल रही है, यहाँ पे I0 मिल रही है। तो हमको बताना है कि कितना परसेंटेज ट्रांसमिट हो रहा होगा। यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर से एक बार। Two polarides are crossed each other if one of them is rotated through 60 degree, uh, then what percentage of incident unpolarized light will be transmitted by the polarides? परसेंटेज बताना कितना परसेंट ट्रांसफॉर्म है। I by 4 P1
हाँ P1 से I/4 I/2 होगा ना, cos 60। देख लेना भाई, मुझे तो नहीं लगा, मैं कर देता हूँ इसको, देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा वो तो I0/2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जाएगा तो 60 डिग्री बना रहा है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, I0/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मीन्स ये हो जाएगा I0/2 √3 सॉरी 1/2। सही कह रहे हो, 60 डिग्री दिया हमारा। हम्म 60 डिग्री दिया है, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। अ, अ, लेकिन ध्यान रखना, ये 60 डिग्री दिया है तो इसको हम 90 - 60 कर लें, 30 डिग्री बेसिकली। ये अगर एक ऐसे रखा हुआ है ना, इससे हम 60 डिग्री बनाए, रोटेटेड थ्रू, रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री। और 60 को यहाँ पे ध्यान रखना कि हमको लिखा हुआ है वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी ट्रांसमिटेड। इसको 90 - 60 कर लेना, 90 - 60, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर, ये I0 सॉरी 3/4 जाएगा, 3I0/8। तो 3I0/8, इसको फिर से डिवाइड कर देना, सॉरी 3I0/8 डिवाइडेड बाई I0 multiplied by 100, that is 37% approximately। कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर तो है, ठीक तो है, इट इज कॉस स्क्वायर।